Bismillahirrahmanirrahim. The name of our project is EasyFit, EasyFit CMS. Basically it is a conference management system. Group members are Zaid Ahmad, Munib Ahmad Jawad, and Ali Farooq. So basically, let me introduce my system. EasyFit is a web-based conference system. We can say that it is developed to aid effective organization and management of professional, academic, and technical conferences. The web-based application is an object-oriented and multi-conference platform that is made up for four major actors, which are SuperChair, TrackChair, reviewers, and authors. Conferences organizers in an Anglophone country can subscribe to the platform via the internet to access and utilize the different features which include abstract, full paper submission, assignment of papers to reviewers, and sending email notification to authors and reviewers. Let me tell you the objectives of our system. The primary aim, as the name shows, is to conduct conferences or manage conferences system. One of the objective of this project is to enhance the effectivity in usage that is measured through the we can say that expressivity or consistency of graphical user interface. Another objective is to create a system that allows further improvement, extensions of the current functionality. The system should be able to offer opportunity to manage conferences, submissions, reviewers, available sessions, available tracks of the schedule of the conference. The system should offer the possibility to every user to submit a paper to the conference, to edit and to submit. The system should offer the user to the capability to organize, create conference, offer information about it, and from the moment the conference is submitted to the system. The system should provide the capability to assign a paper to set a reviewers. Once the submission period has ended, the assignment period should begin. We cannot upload our papers after that. Now let me tell you the hardware we are using are Dell. It's seventh generation i7. And basically, we are using three systems. One is from HP. One specification I can say the i5 sixth generation, and one is i5 fourth generation. And the framework we are using is Laravel framework. It's a framework of PHP, and that's it about the introduction. हमारे इजी फिट प्रोजेक्ट का यूआई एक्सप्लेन करूँगा। इसमें हमने ज़्यादातर बूटस्ट्रैप यूज़ की हुई है और अभी हम जब प्रोजेक्ट ऑन करते हैं तो हमारे पास ये विंडो आ जाती है। सबसे पहले डैशबोर्ड जो है, इसमें हमारे पास लॉगिन बटन है और रजिस्टर बटन है। हमने पहले ही एक अकाउंट बना चुके हैं तो हम एक वो अकाउंट जो बनाया हम लॉगिन करते हैं। लॉगिन पर क्लिक किया और हमारे पास फॉर्म आ जाएगा। यहाँ पे हम अकाउंट ऐड कर लेते हैं। अब जब एक यूज़र लॉगिन हो जाएगा तो उसके पास ये विंडो आ जाएगी। इसमें हमारे पास एक डैशबोर्ड है, डैशबोर्ड जो कि वहाँ पे शो करेगा यूज़र के जो डिफरेंट रोल्स हैं। अगर किसी कॉन्फ्रेंस में है या उसने कहीं सबमिशन की है तो वो सब रोल यहाँ पे आ जाएंगे। और अगर नया यूज़र है और उसने मेक सबमिशन करनी है किसी कॉन्फ्रेंस में या कॉन्फ्रेंस क्रिएट करनी है तो वो यहाँ पे इजी फिट बटन पे क्लिक करेगा और यहाँ पे क्रिएट कॉन्फ्रेंस। अब हमारे पास इधर तीन ऑप्शन आते हैं, ये किस टाइप की हमने कॉन्फ्रेंस करनी है। तो हम इस पे जो है कॉन्टैक्ट अस और ये कस्टम जो कॉन्फ्रेंस है वो क्रिएट करते हैं। यहाँ पे क्लिक किया तो हमारे पास ये फॉर्म आ जाएगा। अभी मैं फॉर्म को फिल करता हूँ और कॉन्फ्रेंस क्रिएट करता हूँ। तो हमारे पास इधर डैशबोर्ड पे हमारे पास सुपर चेयर का रोल आ जाएगा जब वो अप्रूव हो जाएगी। तो एक एडमिन का रोल है, वो एडमिन जो है कॉन्फ्रेंसेस जो है ना सारी अप्रूव करेगा। तो अब हमारे पास ये सुपर चेयर का रोल आ गया। तो हम इधर अगर सुपर चेयर रोल पे क्लिक करें तो हमारे पास कॉन्फ्रेंस जो है जो हमने क्रिएट की थी वो ओपन हो जाएगी। अब इसमें साइड बार में हमारे पास सबमिशंस की टैब है जहाँ पे हमारे पास सारी सबमिशंस जो होंगी कॉन्फ्रेंसेस की जितनी सबमिशंस भी हैं। यहाँ पे हमारे पास रिव्यू में टैब है, इसमें ऑल सबमिशन पे करेंगे तो फिर जो है ऑल सबमिशंस की जो है लिस्ट आ जाएगी।
इधर हमारे पास फिर है सब रिव्यूवर पे क्लिक करेंगे तो हमारे पास जितने हमारे कॉन्फ्रेंस में सब रिव्यूवर्स हैं उनकी लिस्ट आ जाएगी यहाँ पे। और फिर अगर हमने कोई डिलीट करना है, रिव्यूज़ डिलीट करने हैं, तो हमारे पास इधर सब रिव्यूज़ आ जाएंगे और साथ हमारे पास एक्शन में डिलीट का बटन आ जाएगा। तो हम इस तरह डिलीट कर सकते हैं किसी भी रिव्यू को। और हमारे पास इधर दो बटन्स हैं, सेंड टू ऑथर। ये अगर हम इस पे क्लिक करेंगे तो हमारे जितने भी ऑथर्स होंगे जिन्होंने सबमिशंस की होंगी उनको ईमेल चली जाएगी, एक नोटिफिकेशन चली जाएगी। और यहाँ पे हमारे पास अब मिसिंग रिव्यूज़ का है, जो जिन पेपर्स का हमारे पास रिव्यू नहीं होगा तो उनकी लिस्ट यहाँ पे आ जाएगी। उसके बाद रिव्यू स्टेटस वाले टैब में अगर हम इस पर क्लिक करें तो यहाँ पे लिस्ट ऑफ सबमिशंस आ जाएगी। ठीक है। और ईमेल पे अगर हम करें तो इधर हमारे पास दो ऑप्शंस हैं, ऑल ट्रैक चेयर्स। अगर हम इस पर क्लिक करेंगे तो ऑल ट्रैक चेयर्स, तो हमारे पास इधर फॉर्म ओपन हो जाएगा और हमने इधर एंटर सब्जेक्ट, जो भी हमने सब्जेक्ट है और बॉडी में जो भी हमने नोटिफिकेशन भेजनी है ट्रैक चेयर्स को, ऑल ट्रैक चेयर्स को, तो यहाँ पे एंटर करके डाटा तो हम सबमिट पे बटन पे क्लिक कर देंगे। और इसी तरह ऑल ऑथर्स टू, तो इसमें भी हमारे पास यही फॉर्म होगा और जो भी हमने नोटिफिकेशन भेजनी है ऑथर्स को वो चली जाएगी। अब हमारे पास इधर साइड पे असाइनमेंट का है बटन। इसमें हम जो है ना रिव्यूअर्स को या जिनको कहते हैं पीसी मेंबर्स को अगर हमने सबमिशंस असाइन करनी है रिव्यू करने के लिए, तो हमारे पास इधर दो ऑप्शन है, बाय पीसी मेंबर। अगर हम इस पर क्लिक करेंगे तो हमारे पास इधर पीसी मेंबर्स की लिस्ट आ जाएगी और साथ ही एक्शन में हमारे पास असाइन का बटन आ जाएगा। जब हम असाइन बटन पर क्लिक करेंगे तो हमारे पास जो है ना सबमिशंस की लिस्ट आ जाएगी। तो जो हमने सबमिशन असाइन करनी है उसको हम सबमिशन असाइन कर देंगे, वो सेलेक्ट करके सबमिशंस हम उसको असाइन कर देंगे। और दूसरे ऑप्शन में ये है कि हमारे पास सबमिशंस आ जाएंगी, सबमिशन सेलेक्ट करके और हम पीसी मेंबर की ईमेल लिखेंगे। इसमें हमारे पास जो है वो बाय सबमिशंस पीसी मेंबर को सबमिशंस असाइन हो जाएंगी। उसके बाद हमारे पास पीसी का है व्यू पीसी मेंबर्स। यहाँ पे हमारे पास जितने भी पीसी मेंबर्स या रिव्यूअर्स होंगे उनकी लिस्ट आ जाएगी। और यहाँ पे अगर हमने किसी को पीसी मेंबर को ऐड करना है किसी ट्रैक में, तो हम उसकी यहाँ पे ईमेल डालेंगे और हम ट्रैक सेलेक्ट करके यहाँ पे सबमिट पे क्लिक कर देंगे तो उसको इनविटेशन चला जाएगा वो असाइन उस ट्रैक में वो सब पीसी मेंबर एज अ नोटिफिकेशन चली जाएगी कि आप एक्सेप्ट करते हैं या नहीं। तो अगर वो एक्सेप्ट करता है तो वो ऐड हो जाएगा, अगर नहीं करता तो वो फिर डिक्लाइन, तो फिर वो ऐड नहीं होगा। Assalamu alaikum. My name is Zaid Ahmed and I will be explaining the code. First of all, we are using Laravel framework. Laravel is a framework of PHP. Architecture of Laravel is MVC, which is a model view controller. इसके अंदर हम लोग जो डेटाबेस यूज़ कर रहे हैं वो यूज़ कर रहे हैं MySQL लोकल होस्ट पे ही। तो सबसे पहले अगर हम लोग टेबल क्रिएट करते हैं तो टेबल क्रिएट करने का जो कोड है वो ये है। इसके अंदर हम लोग ये टेबल क्रिएशन कोड है जिसके अंदर हम लोग टेबल का नाम देते हैं, टेबल की एंटिटीज देते हैं और अगर उनकी कोई लेंथ है वो भी देते हैं। जैसे कि स्ट्रिंग की लेंथ हम लोग प्रोवाइड करते हैं, इंट का जो इंट होता है उसकी हम लोग लेंथ नहीं प्रोवाइड करते। इसी तरह अगर टाइम स्टैम्प है उसकी कोई हम लेंथ प्रोवाइड नहीं करते। इसी तरह अगर इस टेबल को हमने MySQL डेटाबेस के अंदर माइग्रेट करवाना है तो उसकी जो कंडीशन है, जो उसकी कमांड है वो ये है PHP आर्टिजन माइग्रेट। अगर उसी माइग्रेशन को रिफ्रेश करना है तो उसकी जो कमांड होती है वो PHP आर्टिजन
माइग्रेट डबल कॉलन एंड रिफ्रेश। तो इन दो कमांड से टेबल एक PHP के अंदर एम्बेड हो जाता है। उसके बाद हम लोग इसी तरह के डिफरेंट मॉडल्स माइग्रेशंस बनाई हुई हैं हमने, डिफरेंट टेबल्स बनाए हुए हैं जिसके अंदर फॉरेन कीज़ भी एक्सप्लेन हुई हुई है, जैसे कि इसके अंदर ये फॉरेन की एक्सप्लेन की हुई है यूज़र आईडी कॉन्फ्रेंस के अंदर, कॉन्फ्रेंस टेबल के अंदर। इसी तरह ये राउट्स हैं, राउट्स एज इन के कुछ भी डाटा अगर फैच करना है उसके लिए हम लोग गेट यूज़ करते हैं, या अगर कोई भी हमने डाटा सेंड करना है, कोई रिक्वेस्ट सेंड करनी है तो उसके लिए हम लोग पोस्ट यूज़ करते हैं। डाटा गेट करने के लिए या कोई फंक्शन अप्लाई करने के लिए या कोई मेथड कॉल करने के लिए हम लोग गेट यूज़ करते हैं। और इसके अंदर जो हम मिडल वेयर यूज़ कर रहे हैं वो एक ऑथ का मिडल वेयर है और एक वेरीफाइड का मिडल वेयर है। तो हमारे सॉफ्टवेयर सिस्टम के अंदर जो भी यूज़र आएगा उसको पहले ऑथेंटिकेटेड और वेरीफाइड होना चाहिए, तभी वो हमारे सिस्टम को यूज़ करेगा। ये मिडल वेयर हर राउट पर लगा हुआ है। तो इस जैसे कि फॉर एग्जांपल हम इस राउट की अगर एग्जांपल लेते हैं, इस राउट को अगर हम कॉल करेंगे, पेपर को एडिट करने का ये राउट है, इसका जो कंट्रोलर है उस कंट्रोलर का नाम ऑथ कंट्रोलर है और उसके अंदर जो फंक्शन है वो पेपर एडिट का है, एडिट पेपर का। अब हम मूव करते हैं कंट्रोलर के अंदर, क्योंकि जिस तरह के पहले एक्सप्लेन किया गया है ये एक MVC मॉडल है। तो पहले मैंने माइग्रेशन दिखाई, पिछले वीडियो के अंदर अली फ़ारूक ने व्यू को एक्सप्लेन कर दिया है। तो माइग्रेशन मैं अभी एक्सप्लेन कर चुका हूँ, अभी मैं कंट्रोलर को एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो कंट्रोलर के अंदर बहुत सारे फंक्शंस हैं जिनकी डिफरेंट फंक्शनैलिटीज़ है, लाइक पेपर सबमिशन हो गया, पेपर एडिंग हो गया, पेपर डिलीट या ऑथर एडिंग, ऑथर के ऊपर पूरा CRUD ऑपरेशन। तो उसके अंदर ये सारे फंक्शंस अवेलेबल हैं। तो सबसे पहले मैं पेपर सबमिशन का अगर एग्जांपल ली जाए तो ये पेपर सबमिशन का व्यू है जो अगर हम लोगों ने डिस्प्ले करवाना है अपने HTML पेज के ऊपर तो उसके अंदर ये है। इसके अंदर हम लोगों ने जो राउट्स हैं उनको हम लोगों ने उन राउट्स की जो आईडीज़ हैं अगर वो डिस्प्ले करवाते हैं अपने राउट के अंदर, तो वो आईडी फॉर एग्जांपल एक यूज़र जिसकी सबमिशन, जिसका पेपर सबमिशन जो है वो 1 राउट पे पड़ी हुई है, तो अगर राउट के अंदर 1 लिखा आ रहा है और यूज़र अगर फॉर एग्जांपल एज अ टेस्टर अगर हम लोग देखे जाएँ तो 1 की जगह अगर 2 को ऐड करते हैं तो वो ऑब्वियसली किसी और के पेपर के अंदर मूव ऑन कर जाता है। इसीलिए हमने जो आईडीज़ हैं उनको इनक्रिप्ट किया हुआ है, उसके लिए जो हमने पैकेज यूज़ किया हुआ है वो यूज़ किया हुआ है हैश आईडीज़। ये हैश आईडीज़ जो लिखा हुआ है ये पेपर आईडीज़ को या जो भी हमने आईडीज़ यूज़ की हैं अपने वेबसाइट के अंदर उसे इनक्रिप्ट करने के लिए ये हैश आईडीज़ यूज़ किया है। और ये लेंथ जो दी हुई है ये उनकी लेंथ है, लाइक फॉर एग्जांपल अगर 1 आईडी है तो उसको इनक्रिप्ट करके कितने उसकी जो करैक्टर्स हैं उसकी जो इनक्रिप्शन है उनकी लेंथ कितनी होनी चाहिए, ये 40 लेंथ दी हुई है। तो हम लोगों ने इसकी जो फंक्शन है इसके अंदर हमने जो कॉन्फ्रेंस आईडी और ट्रैक आईडी जो आ रही है पिछले राउट से उनको हम लोगों ने डिक्रिप्ट किया है क्योंकि वो उधर से इनक्रिप्टेड हुई हुई आ रही थी। उसके बाद हम लोगों ने बस उनको व्यू करवाया है। व्यू जो फंक्शन है इसके अंदर लारावेल फ्रेमवर्क के अंदर वो यूज़ होता है किसी भी पेज को व्यू करवाने के लिए और विद यूज़ होता है किसी भी उन क्या कहते हैं कोई भी वेरिएबल जो है उसे सेंड करने के लिए उस व्यू पेज में, और ये इस नाम से उस पेज के अंदर इस नाम से उस वेरिएबल को एक्सेस किया जा सकता है। और हमने सारे फंक्शंस के ऊपर ये ट्राई और कैच लगाया हुआ है ताकि कभी भी हमारा सॉफ्टवेयर जो है वो क्रैश ना करे और हमारा कोड ना दिखाए। जैसे कि फॉर एग्जांपल लारावेल अगर क्रैश करता है हमारा तो वो हमेशा किसी ना किसी लाइन ऑफ कोड पे चला जाता है और वो कोड दिखाने लग जाता है यूज़र को, तो ये हम बिल्कुल नहीं चाहते, इसलिए हमने ट्राई और कैच लगाया हुआ है। अब हम लोग मैंने एक एक्सप्लेन कर दिया, इन सारों को एक्सप्लेन करने के लिए तो बहुत ज़्यादा बड़ी वीडियो चाहिए होगी, लेकिन इसके अंदर मैंने मेन चीज़ें जो मेन फ्रेमवर्क या कोई पैकेजेस यूज़ किए हैं वो एक्सप्लेन कर दी हैं।
इसके साथ साथ हम लोगों ने फॉर एग्ज़ाम्पल अगर इस फंक्शन की एग्ज़ाम्पल ली जाए पेपर सबमिशन की, तो इसके अंदर हम लोग पेपर सबमिट करवा रहे हैं। इसके अंदर हम लोगों ने यूज़ किया है वेयर यूज़ होता है किसी भी क्या कहते हैं के अंदर कंडीशन लगाने के लिए। किसी भी अगर हम डेटाबेस के अंदर कंडीशन लगाना चाहते हैं, लाइक फॉर एग्जांपल हमें वन आईडी का यूज़र चाहिए या किसी उसके ईमेल के अगेंस्ट यूज़र का फुल डाटा चाहिए, तो ये वेयर से यूज़ करके हम लोग उस पर डिफरेंट कंडीशन अप्लाई करके डेटाबेस के अंदर, तो हम लोग उससे डाटा एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। इसके अंदर हमने अपने कोड के अंदर बहुत सारी वैलिडेशन यूज़ की हैं कि फॉर एग्जांपल डाटा फैच नहीं होता, या अगर यूज़र रजिस्टर्ड नहीं है हमारी वेबसाइट पे, तो वो बिल्कुल अलर्ट दे देगी, जैसे कि फॉर एग्जांपल इसके अंदर दिया हुआ है यूज़र नॉट रजिस्टर्ड ऑन इजी फिट। इस तरह की हमने थोड़ी सी वैलिडेशंस डाली हुई हैं। हमारे सॉफ्टवेयर के अंदर जो पेपर सबमिशन है उसके अंदर सिर्फ जो फाइल टाइप हम लोगों ने स्पेसिफाई की हुई है वो पीडीएफ फाइल है। अगर पीडीएफ फाइल के अलावा कोई और फाइल अपलोड करते हैं, लाइक फॉर एग्जांपल आप MP3 या MP4 या डॉट वर्ड या डॉट एक्सेल फाइल अपलोड करते हैं, तो उसके अंदर वो आपको बता देता है कि ये जो फाइल टाइप है ये एरर दे रहा है। लाइक फॉर एग्जांपल ये अलर्ट जनरेट कर देगा एरर का। इसके बाद सिंपल हम लोगों ने पेपर सबमिशन जो ली थी उसके अंदर हम लोगों ने जो रिक्वेस्ट से डाटा फैच कर रहे थे उसको इनिशियलाइज करवाया। ये उसका न्यू ऑब्जेक्ट बना के उसको कॉल करके उसके एंटिटीज़ को कॉल करके उनके अंदर बस डाटा स्टोर कराया। ये डाटा स्टोर करवा दिया उसके अंदर। उसके बाद हम लोगों ने इस लाइन ऑफ कोड से उस जो उसकी फ़ाइल है, लाइक फॉर एग्जांपल उसकी एक फ़ाइल होती है जब पेपर सबमिशन होती है, तो हमेशा उसकी एक फ़ाइल होती है जिसके अंदर वो पूरा कोड, पूरी उसने जो भी रिसर्च है वो सबमिट कराई होती है। तो ये उस फाइल के अंदर पूरी ये फाइल जो है जो आई हुई है ये एक्सेप्ट हो के ये उसके अंदर क्या कहते हैं उसे इन इजी वर्ड्स सेव हो रही है हमारे डेटाबेस के अंदर। उसके बाद हम लोगों ने जो कोरस्पॉन्डिंग ऑथर्स हैं उनको ईमेल जनरेट करवाई हुई है। ये ईमेल जनरेशन का कोड है इतना सा। जो कोरस्पॉन्डिंग ऑथर्स हैं सिर्फ उन्हें ही ईमेल जाएगी, जो कोरस्पॉन्डिंग ऑथर्स नहीं है उन्हें ईमेल नहीं जाएगी, इसलिए ये कोरस्पॉन्डिंग ऑथर्स को ईमेल जा रही है। उसके बाद एक ईमेल जाएगी जो अगर मल्टीपल सुपर चेयर्स हैं तो उन मल्टीपल सुपर चेयर्स को जाएगी। अगर सिंगल सुपर चेयर है तो सिंगल सुपर चेयर को एक नोटिफिकेशन ईमेल जाएगी कि आपकी कॉन्फ्रेंस के अंदर जो है एक सबमिशन ऐड हो गई है। उसी के बाद इसी तरह अगर उस ट्रैक के अंदर मल्टीपल ट्रैक चेयर्स हैं या सिंगल ट्रैक चेयर्स हैं तो उन ट्रैक चेयर्स को भी एक ईमेल जनरेट होगी कि आपके ट्रैक के अंदर क्या कहते हैं एक सबमिशन जो है वो सबमिट हुई है। इसके बाद ये पेज रीडायरेक्ट करवा दिया जाएगा होम पेज पे। अब इन सब को एक्सप्लेन करने के लिए, क्योंकि ये एक मल्टीपल लाइन ऑफ कोड्स हैं, ये तो सिर्फ एक कंट्रोलर है, बाकी अगर हम व्यू कंट्रोलर को लेते हैं उसके बाद भी इनके भी 500 लाइंस ऑफ कंट्रोलर्स हैं। उसके बाद अगर हम सुपर चेयर को ले लें, सुपर चेयर तो बहुत ज़्यादा ही है, क्योंकि सुपर चेयर एक एडमिन एंटिटी है उसकी कॉन्फ्रेंस की, तो ऑब्वियसली इसके फंक्शंस बहुत ज़्यादा हैं, इसलिए इसकी लाइन ऑफ कोड्स भी बहुत ज़्यादा है। इसी तरह अगर ट्रैक चेयर को भी एक्सप्लेन किया जाए तो उनके अंदर भी बहुत ज़्यादा काम हुआ है और लाइन ऑफ कोड्स हैं। इसलिए अगर ज़्यादा एक्सप्लेनेशन, मोर डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन चाहिए हुई तो अपॉन रिक्वेस्ट अवेलेबल हो सकती है।